We are studying Canto 1, Chapter 9, Passing Away of Bhishma Pitamaha, text number 9. So we'll begin. Tam sametan mahabhagan uplabhya vasutama pujyayam asadharma jano deshakala vibhagavit tan sametan mahabhagan uplabhya vasutama pujayam asadharma jano deshakala vibhagavit. अस्त श्लोक पढ़ो. तान् संस्थानमहाभागान् उपालभ्य वसुमतां पूजयामसधर्मज्ञो देशकालविभाग. Word to word meaning. Tan, all of them, Sametan, assembled together. Mahabhagan, all greatly powerful. Uplabhya, having received Vasu Tamaha, the best among the Vasus, Bhishma Dev. Pujyam Asha, welcomed. Dharmajana, one who knows religious principles. Desha, place. Kala, time. Vibhagavit, one who knows the adjustment of place and time. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Bhishma Dev, who was the best among the 8 Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. तो जो भीष्म पितामह 8 वासुओं में से एक हैं, जो क्या है, सभी को जितने भी लोग जहाँ पे वहाँ इकट्ठे होते हैं, सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, ऋषिगण आते हैं, तो सबका क्या है, रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करते हैं. वो जानते हैं कि जो रिलीजियस फॉर ही न्यू परफेक्टली ऑल द रिलीजियस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, कि समय काल परिस्थिति के अनुसार कैसे प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए, करना चाहिए, सभी वो जानते हैं. तो ही इज अ वेरी वेल बेस्ट अमंग द 8 वासुस. सो तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, expert religionist know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must expert in adjusting things in terms of time and place. अब यहाँ पे जैसे बोले एडजस्टिंग, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए. कि अब जैसे गांव के लोग हैं, उनको अंग्रेजी आएगी नहीं, तो अगर मैं वहां पे जाके अंग्रेजी में बताऊं तो सही है नहीं. प्रचार करने में उनकी भाषा में उनको प्रयास करो समझाने का, है ना. तो समय काल परिस्थिति के अनुसार, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर दो, नो, वो यूनिवर्सल है, उनको वैसा ही बताना है. मगर कि समय काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, मगर प्रिंसिपल्स को ब्रेक डाउन नहीं करना. डोंट बॉइलिंग डाउन द फिलोसफी. ठीक है. तो भीष्म देव वाज वन ऑफ द 12 ग्रेट अथॉरिटीज इन प्रीचिंग दिस कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो भीष्म पितामह हमारे 12 महाजनों में से एक है. And therefore he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all part of the universe. Even जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पे अभी अपने मृत्यु के बेड पे हैं, फिर भी वो सबको रिसीव और वेलकम कर रहे थे. He was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in a normal healthy condition. But he was quite fit by the activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet word with hearty expressions. And all of them were well received. तो देखिए, रिसीव करने के बड़े तरीके. फिजिकली यहाँ तो बाहर जाइए, प्रणाम कीजिए, फिजिकली सेवा कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ तो क्या है, अपने वचनों से, मन के वचनों से. तो यहाँ पे परीक्षित, यहाँ पे भीष्म पितामह ना तो अपने घर पे हैं, ना तो फिजिकली इतना वेल है कि जाके उठ जाए तो प्रणाम कर ले. तो ही इज how he was welcoming them through the utterance of sweet words with his expressions, hearty expressions. So this we should also try to understand and implement कि कभी कभी हम लोग भी बिजी होते हैं, तो हम फिजिकली नहीं जा पाते, तो हमें अपने वचनों के द्वारा उनको प्लीज करना चाहिए. ठीक है. तो one can perform one's duty by physical work, by mind and by word. तो हम लोग शरीर, मन और वचनों से कार्य कर सकते हैं. And he knew well how to utilize them in proper place, and therefore there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit.
तो यहाँ पे भीष्म पितामह जिस प्रकार से क्या है, तीनों की शैया पे हैं, तो फिजिकली तो जाके उनको गेस्ट को रिसीव नहीं कर सकते जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, है ना, तो उठ नहीं सकते, ना तो अपने घर पे हैं, तो अपने जो वचन है या अपने एक्सप्रेशन है उनके द्वारा वो उनको रिसीव कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर फिजिकली हम कैपेबल ना हो, कोई अगर मिलने आए हमसे, कुछ बात करने आए, फिजिकली अगर हम उनसे ना मिल पाए या फिजिकली उनको रिसीव ना कर पा रहे हो, तो हमारे अपने मन और वचनों से, अपने एक्सप्रेशन से इस तरह से जताना चाहिए कि वी आर वेलकमिंग। दैट इज द बेस्ट वे टू रिसीव द गेस्ट। इस तरीके से हमें गेस्ट को रिसीव करना चाहिए जो भी आते हैं, ठीक है। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णं च तत्प्रभावाज्ञा आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूज्यम अशा माययो पथ विग्रहाम। क्या कहते हैं? कहते जो भगवान श्री कृष्ण है वो सभी के हृदय में है, और वो जो अपना दिव्य रूप है वो एक्सटर्नल मैनिफेस्ट करते हैं अपनी अंतरंग शक्ति जो इटर्नल पोटेंसी है उसके द्वारा। तो यही जो भगवान है ये भीष्म पितामह के हृदय में भी है, और भीष्म पितामह उनके सारे गुणगान भी जानते हैं, और इसीलिए वो उनको पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो हमें क्यों बार बार भगवान कृष्ण के बारे में सुनने को कहा जाता है या उनके बारे में जानने को कहा जाता है? क्योंकि वो क्या है, सुप्रीम पर्सन है, सुप्रीम पर्सन है ना, भगवान है। तो जब तक हमें पता नहीं, उनकी ग्रेटनेस नहीं पता कितने महान है, तो क्या हमको पूजा करने की पोजीशन पे आएंगे? नहीं। यदि हम उनको अपने जैसे एक साधारण मान लें, फिर हम उनकी पूजा क्यों करेंगे? हम अपने कितने ही मित्रों की पूजा करते हैं, उनको तो हम अपने जैसे मानते हैं, करते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए भगवान की महानता को जानना, उन पे मेडिटेट करना, उनका गुणगान जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, पूजा कर सके। क्योंकि अगर हम उनका गुणगान देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट। हम लोग किस लिए बने? हम उनके दास हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी। तो भीष्म पितामह, अब भगवान तो हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं, मगर जो अपना वो मैनिफेस्ट करते हैं रूप जो है दिव्य रूप, वो अपनी अंतरंग शक्ति के रूप में वो बाहर प्रस्तुत होते हैं, जैसे द्वापर युग में थे। भगवान भीष्म पितामह के हृदय में भी है, और भीष्म पितामह उनके सारे गुण जानते हैं, भगवान के जितने भी गुणगान हैं, ग्लोरीज हैं, इसलिए वो उनको पूजनीय है उनके लिए वो। इसलिए भीष्म पितामह के लिए भगवान जो कृष्ण है वो पूजनीय है। तात्पर्य में बताते प्रपद कहते हैं, द लॉर्ड ऑमनीपोटेंसी डिस्प्लेड बाय हिज सिमल्टेनियस प्रेजेंस इन एवरी प्लेस, कि जैसे भगवान है। हरे कृष्ण प्रात प्रतिम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जैसे अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि भगवान सबके हृदय में है, फिर बाहर कैसे दिख रहे हैं भीष्म पितामह को? क्योंकि भगवान ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट मतलब अगर वो यहाँ पे है, अभी जैसे द्वापर युग में भगवान स्वयं आए नीचे, ठीक है, डिसेंड हुए यदु डायनेस्टी में, पांडवों की सेवा किया उन्होंने, सॉरी पांडवों की सेवा नहीं, मतलब उनके साथ में रहे, पांडवों के साथ रहे, मित्रता का भाव रखा, छोटे भाई का साथ रखा, कुंती महारानी के नेफ्यू बने, तो इस तरह से कई रिश्ते में निभाए उन्होंने। तो क्या भगवान का गोलोक धाम खाली हो गया होगा वहां से? हाँ, भगवान तो यहाँ पे, तो ऊपर खाली होगा, ऊपर भगवान नहीं होंगे? भगवान ऊपर भी है और यहाँ पे भी है। अपने गोलोक धाम तो वो भी छोड़ते नहीं, और यहाँ पे भी प्रस्तुत है, हम सबके हृदय में भी है और सारी जगह है। ये भगवान की एक और गुणगान, उनकी ग्लोरी है कि अब जैसे अब मैं यहाँ अपने कमरे में बैठी हूँ, अपने स्टेट में, अपने एक डिस्ट्रिक्ट में, अपने एक छोटे से घर में, एक कमरे में मैं बैठी हूँ, आप लोग मुझे स्क्रीन के थ्रू देख पा रहे हो, ठीक है। अब मैं एक समय में आपके घर पे तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। मैं अपने घर पे गया, मैं पैदल चल के आऊँ, इतना ट्रेवल करके फिर कहीं आपके घर पहुंचूंगी, तो आपके घर जाऊंगी तो फिर यहाँ पे लेक्चर कौन देगा? तो कहने का अर्थ ये है कि हम साधारण मनुष्य हैं, ठीक है। हम लोग एक स्थिति में, एक समय में हर जगह नहीं हो सकते, मगर भगवान एक समय में हर जगह हो सकते हैं। जैसे भगवान के द्वारका में कितनी रानियां थी उनकी? 16,108, और उन सबका अपना अपना एक महल था। ये नहीं था कि एक ही महल में सारी रहती थी, नहीं, हर एक रानी का अपना अपना एक महल था, और भगवान हर रानी के साथ होते थे एक समय पे, मतलब अपने आप को एक्सपैंड कर लेते थे। एक नारद मुनि अगर रुक्मिणी के महल में आए हैं तो भगवान कृष्ण उसको उनको वहां पे भी
पूजा अर्चन कर रहे हैं, उनके उनको रिसीव कर रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, उनको प्रसाद खिला रहे हैं ब्राह्मण ऋषि। और अगर उसी समय नारद मुनि सत्यभामा के जाएंगे तो भगवान कृष्ण वहां पे भी होंगे, वहां पे भी उनको आओ भगत करेंगे, बोले आइए। तो भगवान एक समय में हर जगह प्रस्तुत है, ठीक है। तो ये भगवान का एक और गुणगान है, हमारे हृदय में भी है, गोलोक धाम में भी, यहाँ पे भी, सारी जगह है। तो ये सिर्फ भगवान का ही है। सो आगे आता है, तो when he manifests his internal transcendental form in material world, he does so by his internal potency। तो भगवान ये अपनी जो अंतरंग शक्ति है उसके आधार पे ऐसा कर पाते करते हैं। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल मटेरियल एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद हिज इटर्नल फॉर्म। तो भगवान का जो दिव्य रूप है, ये जो माया है, माया का भगवान के दिव्य रूप से कुछ लेना देना नहीं है। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, तो उसका भगवान के दिव्य रूप से कुछ लेना देना नहीं है। All this truth were known to Shri Bhishmadev who worshipped him accordingly। तो भीष्म पितामह को ये सारा पता था कि भगवान कृष्ण मेरे हृदय में भी है, सर्वत्र है, अपने धाम में भी है, यहाँ भी है। तो इसलिए वो उनके लिए पूजनीय थे और वो उनकी पूजा आराधना करते थे। तो विल मूव फर्दर, मतलब समझ पाना कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ठीक है। उनको इतना पता था। पांडुपुत्रान उपासीनम प्राश्रया प्रेम संगतान अभ्याचाता नुरगर्षरेर अंधिभूतेन चक्षुषा। The son of Maharaj Pandu were sitting silently nearby। अभी जैसे हमने देखा कि भीष्म पितामह के पास कौन कौन गए, युधिष्ठिर महाराज गए, साथ में उनके पांडु 5 दूसरे भाई भी गए, भगवान कृष्ण स्वयं गए, ऋषिगण आए, सभी लोग आ गए। तो अभी ये लोग सारे महाराज भीष्म पितामह के आसपास कैसे बैठे, शांति से बैठे। ओवरटेकन विद अफेक्शन फॉर देयर डाइंग ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर उनके ये दादा पितामह थे उनके लिए, और कहीं ना कहीं वो उनको देखते हुए दुखी भी थे। एक वात्सल्य भाव उनके मन में भाव आ रहा है। तो जब भीष्म पितामह को देख रहे हैं तीर की शैया में, तो थोड़ा दुख भी उनको है। सीइंग दिस भीष्म पितामह कांग्रेचुलेटेड देम विद फीलिंग। भीष्म पितामह उनको बधाई देते हैं। There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection। तो बीच में क्यों बधाई, किस सेंस में, कि बोल रहे हैं कि अभी भी आप लोगों में वैसा भाव है कि दो मैं कौरवों के साइड पे था, बट आपने अभी भी वैसा भाव मेरे लिए रखा है। तो ये देख के उनको प्रसन्नता हो रही थी। तो ऐसे ये खुशी के आंसू उनके भी आंखों से निकल रहे थे भीष्म पितामह के, कि ऐसा वो प्रेम अपने पोतों में देख पा रहे थे, जो युधिष्ठिर और उनके जो भाई हैं। तो ऐसा एक आदान प्रदान था एक प्रेम का, जो भीष्म पितामह और उन पांडु भाइयों में था। तो वह जब पांडु महाराज की मृत्यु हुई, तो जब ये पांडु महाराज जब मरे, तो अर्जुन उस समय कोई 13-14 साल का होगा, मतलब छोटे ही थे उस समय, बहुत छोटे थे ये लोग। एंड नेचुरली दे वर ब्रॉट अप अंडर द अफेक्शन ऑफ एल्डरली मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। अब घर में भी जब जवानों की मौत हो जाती है, तो घर में बच्चे हों छोटे जिनके पिताजी नहीं होते, तो घर के जो बड़े लोग होते हैं उनकी छत्र छाया में उनका लालन पालन होता है। तो उस समय बड़े जो मेंबर थे कुरु डायनेस्टी के, वो कौन थे, भीष्म पितामह। तो उनके अंडर, उनके अधीन ही इन पांडवों का बचपन से क्या है, लालन पालन हुआ। तो लेटर ऑन जब पांडव थोड़े बड़े हुए, तो दुर्योधन और जो उनके जो दोस्त मित्र संगी थे, तो वो हमेशा वो पांडवों से बड़ी चिढ़ खाते थे। तो इनको बहुत, वो कभी कभी कुछ प्लान करना, तो इनको क्या है, तंग करना। तो उस समय भीष्म पितामह ये सब जानते थे। भीष्म पितामह उस समय भी सब जानते थे कि पांडव बड़े भोले से हैं और इनका कोई दोष नहीं है। ये बेचारे ऐसे ही, ये जो कौरव, ये दुर्योधन है, फालतू में इन पे क्या है टॉर्चर इनको कर रहे हैं। मगर फिर भी भीष्म पितामह उस समय कुछ बोले नहीं थे। दो प्रेम तो करते थे मगर बोले नहीं। क्यों? क्यों? पॉलिटिकल रीजन थे। राजनीति में कोई होता है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि भीष्म पितामह ने जब एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी सिंहासन पे उस समय जो भी राजा होगा, तो उसके प्रति मैं क्या है, कृतज्ञ रहूंगा, मतलब उनकी रक्षा करने का मैं कारोबार देता हूँ। तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो इन पांडवों को उस समय कुछ कर नहीं पाते थे, हेल्प नहीं कर पाते थे। अब जब इनका अंतिम समय आ रहा है भीष्म पितामह का, जब उन्होंने अपने इन पुत्रों को देखा युधिष्ठिर महाराज के साथ, तो बड़ी शांति से वो लोग बैठे थे, इतने बड़े बड़े। तो पितामह जो है कि वो बहुत बड़े वॉरियर हैं, बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब देखिए, जिसको आप सब जानते हैं, आपके साथ कोई रहा हो, ठीक है, बड़ा प्रेम संबंध हो आपके साथ, मगर वो उनको दुख में देख के भी आप कभी उनकी मदद ना कर पाए हो, ठीक है, मतलब आपने कभी उनकी मदद ना की हो किसी कारणवश,
कि आपके खुद के पॉलिटिकल रीजन या कुछ रहे हो, तभी आप मदद ना कर पाए हो, और फिर भी उनका आपके प्रति ऐसा अफेक्शन, इतना प्रेम देखना अंत समय में आंखों में आंसू जायज है कि नहीं? पांडवों के उस समय भीष्म पितामह को पता था कि दुर्योधन इनके साथ क्या क्या कर रहा है, फिर भीष्म पितामह कुछ कर नहीं पाए, उनको कुछ प्रोटेक्शन या रक्षा या कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पाए। तो वो सबसे बड़े थे, सबसे बड़े थे ना, इवन दुर्योधन थे, सबसे बड़े थे वो, मगर फिर भी कुछ पांडवों की कुछ खास मदद उन्होंने की नहीं। इवन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, चाहे कुछ भी कारण रहा हो, मगर कुछ नहीं कहा उन्होंने। इतना सब कुछ होने के बाद एक बड़े मेंबर से अपेक्षा होती है हमें कि घर में कुछ गलत हो तो हम अपेक्षा करते कि बड़ा जो है वो उसको सिचुएशन को समझेगा और सुलझाएगा कि चलो वही, क्योंकि सब मानेंगे उनकी, मगर भीष्म पितामह ने कभी ऐसा किया नहीं। तो तभी भीष्म पितामह की आंखों में भी आंसू है कि देखो मैं इनको कभी जब जीवित, मतलब जब सही पोजीशन पे था, इनको कभी मदद किया नहीं, अभी देखो ये लोग मेरे पास आके बैठे हैं, एक अपना प्रेम दिखा रहे हैं, तो इसको देख के उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो जो ऑटोमेटिकली उनकी आंखों से बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। He remembered the great tribulation suffered by his most pious grandson. उनको याद आ रहा था कि किस प्रकार उनके पोतों ने, जो पांडव हैं, कैसे कैसे दुख नहीं देखे दुर्योधन की वजह से। लक्षागृह को जलाया गया, फिर भीष्म को जहर पिलाया गया, द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तो बहुत सारे कष्ट उन्होंने बचपन से ही देखे, तो उनको सब याद था कि कैसे उन्होंने ये सब देखा। Suddenly he was the most satisfied man because of Yudhishthira being enthroned in place of Duryodhana, and thus he began to congratulate them. तो इसलिए अब जो है दुर्योधन, भीष्म पितामह अब काफी प्रसन्न हो रहे हैं कि फाइनली अब जो युधिष्ठिर महाराज को राज अभिषेक होगा दुर्योधन की जगह, और इसको देख के वो क्या है, उनको बधाई देते हैं, बधाई दे रहे हैं, और आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो पहले उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, और फिर भी ऐसा प्रेम उनके पोतों का उनके प्रति है, तो ये देख के उनकी आंखों में आंसू आए। दो इतने बड़े जनरल क्षत्रिय हैं, मगर फिर भी वो अपने जो अश्रु है उनको रोक नहीं पाए, और फाइनली अब वो एक संतुष्ट हैं। फाइनली युधिष्ठिर महाराज जो एक रियल कैंडिडेट है उसको राज्य अभिषेक होगा। अहो कष्टम अहो न्यायम यत् युजम धर्मनंदना जीवितुम नरहता क्लिष्टम विप्रधर्माच्युते श्रेया। भीष्मदेव कहते हैं, ओ what terrible suffering and what terrible injustice you good soul suffer for being the son of religious personified। कि देखिए जो भी सब लोग कहते हैं कि सत्य पे चलो, सत्य की राह पे चलना चाहिए, सच की राह पे चलना चाहिए, इतना आसान नहीं है। कलयुग है, चारों झूठ है। अभी जैसे हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, देखा जाए तो घर पे भी माहौल भक्ति का नहीं है, चारों तरफ माया है, माया की बात होती है, पेरेंट्स वगैरह नौकरी करो, पढ़ाई करो, भक्ति भक्ति होती रहेगी। बट अगर कहा जाए तो बुढ़ापे में हम भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? एक तो ना आंखों से दिखेगा, ना कानों से सुन पाएगा, और ना तो हम इतना चलने, इतनी फिजिकली स्ट्रेंथ रहेगी कुछ सेवा कर पाए। तो इसलिए इंसान जब तरोताजा अपनी क्षमता है उस समय भगवान की सेवा में लगे तो बहुत अच्छा है। भगवान की सेवा में लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाकी कार्य छोड़ दीजिए, नहीं। मैं भक्ति में अपने कॉलेज के दौरान आई, मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर ही होगा, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, भक्ति भी की, सेवाएं भी की मंदिर में जाके। इवन मैं कह रही हूँ कि मेरे अपने सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स होते थे, जैसे संडे को, मैंने तब भी संडे प्रोग्राम नहीं छोड़ा मंदिर में जाना। मैं अपने हिसाब से, इस हिसाब से पढ़ाई की कि मेरा पढ़ाई वेस्ट भी ना और मैं मंदिर प्रोग्राम भी अटेंड कर सकूं। तो इवन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था मेरा कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि टेम्पल मेरे रूम के बिल्कुल पास ही में था वहां पे कॉलेज टाइम पे। अब तो खैर मेरे घर से मंदिर बहुत दूर पड़ता है, मगर उस समय बहुत पास में था, तो मंदिर जाना नहीं छोड़ा, और अपनी पढ़ाई भी की, पढ़ाई भी पूरी होगी अच्छे नंबरों से। घर वालों को भी कंप्लेन, उनको तो नंबर ही चाहिए ना। भक्ति भी की, दीक्षा भी ले ली कॉलेज के समय ही, और उसके बाद थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस आया, मगर क्योंकि घर पे सभी भक्त नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। मगर देखिए अगर हम दृढ़ हैं भक्ति में तो भगवान खुद हेल्प करते हैं हमें। जॉब भी लगी तो अपना कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम घर का काम भी करते हैं, हाँ नौकरी भी की, पढ़ाई भी की, तो कोई मना नहीं है, आप अपना कार्य कीजिए ना, किसने मना किया है। तो भक्ति के लिए ये उम्र को मत वेट कीजिए कि ओल्ड एज आ जाएगा, ओल्ड एज आएगा भगवान के विग्रह भी नहीं देख पाओगे, ऐसे करके खड़े होंगे, दूरबीन लगाओगे, इतना मोटा मोटा चश्मा, कैसे दिख रहे हैं आज भगवान, क्या पहना उन्होंने, कुछ दिखेगा नहीं, क्या दर्शन करोगे आप। अभी आंखें अच्छी हैं,
तो ये मूवी शूवी छोड़ो, जो अल्टीमेट सुप्रीम हीरो है उनको देखो। हाँ, सुपरमैन बैटमैन कुछ नहीं देने वाले आपको। वो फिक्शन करेक्टर है, काल्पनिक करेक्टर है। जो असली करेक्टर है भगवान कृष्ण, करेक्टर तो नहीं कहेंगे, भगवान स्वयं है, असली सुपर हीरो, उनको देखिए, उनके दर्शन करो तो आपको शुद्धता होगी। भौतिक जगत के लोगों को देख के शुद्धता नहीं आएगी। तो ये मैं ये बताने का प्रयास कर रही थी कि जब हम भक्ति में होते हैं तो बहुत सारी विडंबनाएं आती हैं बीच में, चाहे परिवारजनों से या मित्रों के द्वारा। बोलेंगे तू क्या अभी से लग गया भक्ति में है, तो अभी आस्था वास्ता चैनल देखना तो नहीं शुरू कर दिया तूने? आस्था आपको आपको नहीं बोल रही मैं। टीवी में आता है ना वो रिलीजियस चैनल आते, संस्कार वंस्कार, तो कहते वो सब देखना तो नहीं शुरू कर दिया तूने टीवी छोड़ के? हैं, ये कोई उम्र है आस्था चैनल देखने की, संस्कार देखने की? अभी तो चलो एमटीवी देखते हैं, स्प्लिट्स विला देखते हैं, रूडी वूडी देखेंगे, हैं, ये डांस शो देखेंगे। उससे क्या होगा? दिमाग खराब होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो जब भी हम भक्ति में जाते हैं तो बड़ी विडंबनाएं आते हैं। माता पिता देखो, बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, शास्त्र पढ़े, उनको मजे नहीं आते। मूवी देखे, गलत काम करे, उनको बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चा नॉर्मल है, अब ठीक है। मूवी जा रहा है, मित्रों के साथ घूमने जा रहा है बाहर, गलत काम कर, अब ठीक है, नहीं नॉर्मल है। मंदिर जाना शुरू, अरे सन्यासी हो जाएगा। अरे भाई, अच्छे रास्ते पे है, मीट नहीं खा रहा, शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, तो क्या आपको अपने बच्चे ऐसे नहीं चाहिए? हर कोई अपेक्षा तो यही करता है ना। अब जैसे किसी ने पूछा माताओं को कि माताएं आपको कैसा पुत्र चाहिए, सभी कहते हैं हमें श्रवण कुमार जी जैसा चाहिए भाई, जो अब बड़ा आज्ञाकारी हो। तो बोला कि फिर पति कैसा चाहिए? पति चाहिए श्रवण कुमार जैसा? नहीं नहीं, पति श्रवण कुमार जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर माता पिता की सुनेगा तो हमारी कौन सुनेगा? देखिए, पुत्र तो चाहिए श्रवण कुमार जैसा है कि माता पिता की आज्ञा माने, मगर पति नहीं चाहिए श्रवण जैसा कि क्योंकि माता पिता की आज्ञा सुने। तो ऐसा ड्यूअल नेचर है कलयुग का। तो बड़ी बुरी हालत दुर्गति है। तो इसलिए देखिए, जो भी एक सत्य का साधन लेता है, भक्ति करते विडंबनाएं आती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्य की राह छोड़ दें या सही कार्य करना छोड़ दें, नहीं, हमेशा अटल रहिए, सही कीजिए, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो पांडवों के साथ भी हुआ, मगर रिलीजन, उन्होंने धर्म का रास्ता चुना तो कष्ट कितना देखा उन्होंने। जंगल गए, वनवास झेला 12 वर्षों का, 1 साल का अज्ञातवास झेला। क्या गलती थी उनकी? सही रास्ता अपना रहे थे, मगर उस सही रास्ता अपनाने के चक्कर में भगवान स्वयं उनके साथ रहते थे। कृष्ण भगवान हर कदम पर उनकी प्रोटेक्शन करते थे, जो कि एक झूठे इंसान को नहीं मिलती। तो कहते हैं कि you did not deserve to remain alive under those tribulation, yet you were protected by the brahmanas, God and religion. कहते हैं आप लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि आपको ऐसी सीवियर इतनी कठिनाई आपको देखनी पड़े। अब हम भी भक्ति करते हैं तो किसी का क्या बिगाड़ा है? नाम जप ही तो कर रहे हैं ना। किसी को मारा क्या, पीटा क्या, कोई कुछ बोल दिया क्या बुरा? तो क्यों हमें लोग मना करते हैं भक्ति करने को? कोई बोले तो किसी का क्या बिगाड़ा है? भगवान का नाम जप रहे हैं ना शांति से, कुछ कह रहे हैं क्या किसी को? नहीं ना, अच्छी बात बता रहे हैं ना। तो फिर क्यों हमें मना किया जाता है कि अभी उम्र नहीं है भक्ति की? क्या हम अपने कार्य छोड़ रहे हैं? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, नौकरी करेंगे ना, शादी करेंगे ना, फिर दिक्कत क्या है? एक अच्छे इंसान बनेंगे। और ये सारी चीजें तो हमें माता पिता ने सिखानी चाहिए, और अगर वो नहीं सिखा रहे हैं तो अगर हम कहीं और से सीख रहे हैं तो दिक्कत क्या है? वो कलयुग के जीव है ना, देख नहीं सकते, माया का प्रभाव है, माया नहीं देख सकती कोई अच्छे रास्ते पर चले, वो चाहती सारे बिगड़ जाए। तो ऐसा नहीं है, हमें खुद भी अच्छा बनना है, दूसरों को भी अच्छा बनाना है। तो जो ऐसी मुसीबतें झेलते हुए भी, तो देखो ब्राह्मणों का उनको सहयोग मिला, भगवान की स्वयं प्रोटेक्शन मिली, धर्म का उनको साथ मिला। तो हमें सही रास्ता चुनना है, किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं चुनना है, ठीक है? कभी भी गलत राह का साथ मत देना। गलत को साथ दोगे तो बहुत तकलीफ होगी। झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते, मगर कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। तो मतलब सच ज्यादा देर तक टिकता है, झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। इसलिए सही रास्ते की तरफ चलना। और भक्ति में तो कभी डाउट नहीं करना कि हम लोगों का फिर निर्वाह कैसे होगा, हम तो पिछड़े रह जाएंगे, इसका मतलब कूल नहीं है। मैं आपको बताऊं, भक्त बहुत ज्यादा कूल है, और भक्त बहुत ज्यादा प्रसन्न और शांत चित्त के होते हैं एक भौतिकवादी से, क्योंकि दिन की शुरुआत भगवान नाम से होती है, कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न भगवान को भोग लगा हुआ पाते हैं तो बड़ा शांत रहता है, उतने क्रोध नहीं आता, खुश रहते हैं। वही बता रही है, अभी लॉकडाउन है तो जो भक्त हैं उनको तो फिर भी थोड़ा फायदा है
अपना शास्त्र पढ़ेंगे, हरि नाम करेंगे, मगर एक भौतिकवादी क्या करेगा? लाइट चलेगी, टीवी नहीं होगा, बेचारा पागल, मोबाइल की बैटरी डाउन, क्या करेगा? नेट नहीं चलेगा तो क्या करेगा? वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मगर एक भक्त हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है। ठीक है। सो महाराज युधिष्ठिर वाज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द ग्रेट मैसेकर इन बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। सो अभी की जो अभी चर्चा चल रही कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो काफी परेशान थे कि बैटलफील्ड में बड़ा ज्यादा क्या हो गया, इतने लोगों का संहार हुआ, मृत्यु हुई, एक केवल मुझे राज्य अभिषेक करने के लिए। तो वो काफी चिंता में थे कि ऐसा नहीं होना। देखिए हृदय जो भक्त के बहुत उदार होता है, बहुत शांत चित्त होता है। तो बोले कि देखो मुझे एक राज्य में चढ़ाने के लिए इतने लोगों को मरना पड़ा उसमें, मगर ये नहीं देख रहे थे कि धर्म स्थापित हुआ। मुझे सोच रहे नहीं तकलीफ कैसे होगी, कोई मर कैसे गया मेरी वजह से, तो काफी परेशान थे। तो भीष्म देव ये समझ सकते थे कि क्या परिस्थिति युधिष्ठिर महाराज की है, इसलिए ही स्पोक फर्स्ट ऑफ द टेरिबल सफरिंग्स ऑफ महाराज युधिष्ठिर। वो समझ पा रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज की क्या मनोस्थिति है अभी, कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि सिर्फ मेरे को राजगद्दी में चढ़ाने के लिए इतना बड़ा युद्ध करवा दिया, मगर वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उन्होंने कष्ट कितना झेला और कहीं ना कहीं एक पापी इंसान, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो मैंने जैसे पहले बताया कि भक्त वो दुश्मन की तरफ भी दुश्मनी का भाव नहीं रखता, मित्रता का रखता है। तो वही युधिष्ठिर महाराज का था, दोष दृष्टि नहीं थी, एक अच्छी चीज देख पा रहे थे, इसलिए इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि युद्ध हुआ। तो इसलिए भीष्म पितामह उनको याद दिला रहे थे, एक तरह से उन्होंने बोला कि आपने बड़े कष्ट सहे हैं, ताकि युधिष्ठिर महाराज को याद आ सके कि नहीं इन लोगों ने गलत किया, इसलिए उनको उनकी सजा मिली है। इसलिए भीष्म पितामह ने जानबूझ के पहले कहा कि देखो कितना पाप, कितना कष्ट आप लोगों ने झेला और आपको कितना इनजस्टिस हुआ आप लोगों के साथ में, कि आप लोगों को राज्याभिषेक होना चाहिए था। कुरुक्षेत्र क्या है, ये जो लड़ाई थी कुरुक्षेत्र की, ये उस इनजस्टिस, वो जो एक गलत हुआ उसका एक बदला था, उसी का एक जवाब था कि जो आप लोगों के साथ एक इनजस्टिस हुई। सो देयरफॉर उनको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उनको एक कुछ लेमेंटेशन या शोक नहीं करना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्योंकि कारण सही था, एक अधर्म हुआ और अधर्म को सहना गलत है, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, कहा जाता है। So he wanted to point out particularly that they were always protected by Brahmana, Lord religious principle. तो कहते कि आपको हमेशा ब्राह्मणों का संग मिला है, ब्राह्मण अधर्म का साथ नहीं देते, भगवान अधर्म का साथ नहीं देते। तो कह रहे अगर आपको इनका साथ मिले तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया नहीं। तो ये भी भीष्म पितामह उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो as long as they were protected by these three important items, they were no cause of disappointment. तो आप जब तक इन तीन चीजों से बच रहे हो, वृत्ति के धर्म आपको साथ दे रहा है, भगवान दे रहे, ब्राह्मण दे रहे, तो आपको किसी भी तरीके से निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को एनकरेज कर रहे थे कि देखो दुखी मत हो। So as long as person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by bona fide Brahman and Vaishnava and strictly follow religious principle, one has no cause for despondency. तो ये बहुत सही बात है। क्या बोली कि जब तक व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो कि उसको वैष्णवगण उसको गाइड करते हैं, और स्ट्रिक्टली धर्म के जो प्रिंसिपल है उनको पालन करता है, उसके लिए कोई दुखद समाचार या दुखद कार्य नहीं है, या उसको दुख होने की कोई जरूरत नहीं है। उसको हर परिस्थिति में इन्हीं चीजों को पालन करना चाहिए, इनके अनुसार चलना चाहिए, धर्म, साधुगण और भगवान के जो उपदेश हैं। तो भीष्मदेव as one of the authority in the line wanted to impress this point upon the पांडवास। तो वो उनको पांडव को ये बताना चाहते थे कि देखिए आप लोगों का ब्राह्मणों का संग था, वैष्णवों का। अभी जैसे हमारे जीवन में भी, अभी जैसे हम ये भागवतम अभी पढ़ रहे हैं, शाम को भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता भगवान की वाणी है, उनकी उपदेश है। अभी जैसे वैष्णवगण, अभी जैसे मैं निमित्त बन रही हूँ आपको ये बताने के लिए, तो प्रपाद ऑलरेडी मैं बता चुके, आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स, मैं तो उन्हीं को ही दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो भगवान की वाणी है, आपको बताया जा रहा है, धर्म के अनुसार आप अगर नियमों का पालन करो तो ये तीन चीजें आपके पास हैं, इनका पालन करोगे तो आपको कभी भी दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप जो कार्य करोगे भगवान की इच्छा अनुसार करोगे। भगवान बोलते हैं मेरे लिए कार्य करो, मेरा चिंतन करो, जो कर रहे हो मेरे लिए करो, मुझे शरणागत करो। आप अगर ऐसा करोगे तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो ना। और वैष्णवगण आपको हेल्प करते हैं कि कैसे करना है। देखिए आप जो भोग बनाते भगवान को ऑफर करो, कार्य कर रहे हो तो भगवान को रिजल्ट ऑफर करो, हाँ बातें करनी भगवान के बारे में कीर्तन करो, गाइड कर रहे हैं ना आपको वैष्णवगण। और प्रिंसिपल क्या है धर्म के, हरि गुणगान करो, 4 नियमों का पालन करो। इस तरह से अगर आप पालन करोगे तो आप कभी भी हर किसी परिस्थिति में दुखी होने की जरूरत नहीं है कि आपके माता पिता ही बोल दें
कि भाई आपने गलत कर दिया, नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए, जितने भी लोग भक्ति में हैं, या हम लोग अभी क्या है, साधक हैं, तो ये जो लास्ट का पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या, पहली बात तो ये भगवान की इच्छा अनुसार कॉपरेशन में रहे, भगवान क्या चाहते हैं उसको हम पालन करें। दूसरा, जो हमें वैष्णव और हमारे गुरुजन हमें गाइड करते हैं कि आप ऐसा करिए, हमें उसको पालन करना चाहिए। और तीसरा, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या शंका नहीं आएगी, तब हम बिल्कुल सही रास्ते पर रहेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या है, मिसगाइडेड हो जाएंगे और बिविल्डर हो जाएंगे। तो वो हमें नहीं होना है। अगर आप ऐसा नहीं होना चाहते तो भगवान ने शास्त्र में जैसा बताया और जैसे वैष्णवगण हमें कहते हैं करने को, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करते हुए अपने जीवन को जीना है आगे और भक्ति को करना है। अदरवाइज यू विल ऑल द टाइम इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि डाउट क्या करें क्या ना करें, हमें ऐसा बोला ऐसा बोला। अभी जैसे आज सुबह एक चर्चा हो रही थी, तो कोई भक्त बता रहे थे, कहते कि सपोज अगर जैसे दो भक्त हों, बात करें, आप उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सपोज मैंने आपको कुछ बताया, किसी और भक्त ने भी आपको कुछ उत्तर दे दिया, और आप समझ पा रहे हो कि नहीं इनको तो हम पालन नहीं कर सकते, पता नहीं ये कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं, तो आप दूसरे भक्त के पास जाके उनसे पूछ रहे हो, तो वो शायद आपको थोड़ा लीनियंट करके बता दे। आप मुझे बताओ कि आप किसको फॉलो करोगे, कि जो स्ट्रिक्टली, अब इसमें अगर दो जगह पे डाउट आता है तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र। फिर हमें शास्त्र का सहारा लेना चाहिए कि कौन शास्त्र के अनुसार बता रहा है और कौन थोड़ा उसको वाटर डाउन कर रहा है, ठीक है। तो उस समय हमें प्रभुपाद के ग्रंथ इसीलिए हमें दिए गए हैं कि हम शास्त्र हमें देख सकेंगे प्रभुपाद ने उन शास्त्रों में क्या बताया है। तो जो भक्त आपको शास्त्र के अनुसार बता रहा है, तो हमें बेशक हम उसको पालन ना कर पा रहे हो अपनी कंडीशनिंग के अनुसार, मगर हमें उसी को पालन करने का प्रयास करना है। ये नहीं कि हम किसी और आपको, तो हम आप बड़ा बता रहे हो वैसा आप सही, आप बड़ा ये थोड़ा ना, हम आजकल के युग में थोड़ा ना इसको पालन कर सकते हैं भाई। तो प्रभुपाद ने तो वही बोला, आप कैसे कह रहे हो कि आप पालन नहीं कर सकते हो? हाँ, क्या प्रभुपाद ने आपको इम्प्रैक्टिकल टीचिंग्स दी हैं? नो। जो प्रभुपाद ने बोला वो बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग्स दी हैं और इस समय के अनुसार दी हैं। तो आप ऐसे भक्त को शंका नहीं कर सकते जो प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करके आपको बता रहा है। आप नहीं बोल सकते कि आप इम्प्रैक्टिकल बता रहे, नहीं, वो गलत है। हमें क्या है, शास्त्र को देखना है। जहां पे शंका आती है किसी भक्त पे, तो शास्त्र इसीलिए दिए गए हैं, गुरु साधु शास्त्र। इन तीन चीजों का प्लीज अपने जीवन में धारण रखिए, गुरु साधु और शास्त्र। तो गुरु तो हमारे अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, साधु जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपको मेंटर कर रहे होते हैं, आप उनसे गाइडेंस लेते हैं। अगर वो आपके गुरु और शास्त्र के अनुसार नहीं, तीसरा पॉइंट हमारा शास्त्र है, इन तीन चीजों को लाइन में रखना है। ये इन तीन चीजों को हमें लाइन में रखना है, हमें ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में होनी चाहिए। अगर इन तीनों चीजों के हिसाब से बताया जा रहा है तो कोई भी चीज इम्प्रैक्टिकल या ऐसी चीज नहीं है कि बताई जाए, आप पालन नहीं कर सकते तो आप ये नहीं बोल सकते कि इम्प्रैक्टिकल है। आपको अपनी गलती देखनी चाहिए कि मुझ में कंडीशनिंग है इसलिए मैं पालन नहीं कर पा रहा, मगर करना मुझे यही है, तो मुझे इस स्टेज तक आना है। ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता तो मैं किसी और को पूछ लेता हूँ, चलो जो मुझे थोड़ा सा सस्ता करके ढीला करके बता दे, फिर आप प्रगति नहीं कर पाओगे। और मन में ये जो अभी बोला कि डिस्पोंडेंसी, कि एक एंजाइटी आएगी, वो तभी आती है, तभी हमारा दिमाग बिल्डर होता है, तभी हमें डिल्यूजन आती है, तभी हम सही चीज पालन नहीं कर पाते। फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते उसमें। तो हमें देखना है कि हमें प्योर डिवोशन के लिए जाना है या हमें मिक्स डिवोशन चाहिए। इफ यू वांट टू हैव प्योर डिवोशन, हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, सही तरीके से भक्ति में वृद्धि करनी है, तो डिस्पाइट बीइंग आवर ओन फॉल्ट वी शुड ट्राई टू फॉलो। हमें प्रयास करना चाहिए उसको पालन करने के लिए जो प्रभुपाद ने हमें बोला है। तो उसके लिए आप किसी भक्त को दोषी मत ठहराइए या उनसे द्वेष मत कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको डाउट लगता है तो आप शास्त्र को देखिए, शास्त्र क्या कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉपर वे टू एक्वायर द नॉलेज। ये एक सही तरीका है ज्ञान को अर्जित करने का। तो इस तरीके से हमें ज्ञान लेना चाहिए। नो डाउट, नॉट दैट आई कैन फॉलो, आई शुड गो टू द पर्सन हु कैन गिव मी लिटिल बिट लीनियंसी, कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि आपको मैं प्रिंसिपल ब्रेक करने को बोल दूं? नो। प्रभुपाद बहुत सीरियसली, बहुत बार प्रभुपाद ने अपने शास्त्रों में बहुत ध्यान पूर्वक सब कुछ बताया है
तो अगर हम प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर पा रहे, उनकी टीचिंग्स को नहीं कर पा रहे, क्या पालन करोगे आप? फिर तो दुख आएगा ही आएगा ना। तो हमें शुद्ध भक्तों को पालन करना है, और स्पेशली गुरु साधु शास्त्र अलाइनमेंट में, जैसे भगवान की हार्मनी में क्या इच्छा है, फिर गुरु वैष्णवों द्वारा जैसे गाइड किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग द प्रिंसिपल। तो डोंट गो टू द दोज पर्सन हु आर लिटिल बिट लीनिएंट एंड हु टीच यू अकॉर्डिंग टू योर वे, कि जितना जो आप कन्विंस कर सको आप एडजस्ट कर सको। नो, अगर हर कोई इस तरीके से मैं देखूं कि आस्था क्या एडजस्ट कर सकती है या पूजा क्या एडजस्ट कर सकती है, मैं उसी हिसाब से बता दूं, वो गलत है। प्रिंसिपल एक है, टीचिंग्स एक है, वही जानी चाहिए, एज इट इज जानी चाहिए। अगर उनमें कुछ गलत है देन वी शुड, तब हमें बोलना चाहिए कि नहीं ये व्यक्ति मुझे गलत बता रहा है, प्रभुपाद ने तो ऐसा बोला नहीं, है ना। तो हमें गुरु साधु शास्त्र तीनों को अलाइनमेंट में चलना है, देन वी कैन प्रोग्रेस। तो अदरवाइज अगर आपके मन में शंका या कुछ आ रहा है तो समझ लो आपका खुद का फॉल्ट है, आप पालन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसका मतलब, तो डोंट गो फॉर द लीनियंस, ट्राई टू फॉलो द स्ट्रिक्ट, दैट व्हाट इज गिविंग अप, ठीक है। सो ये आज का मैसेज था जो हमें पढ़ा हम लोगों ने। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न या कोई शंका रही हो किसी के मन में, या कुछ आप बोलना चाहें तो प्लीज कैरी ऑन। तो यस पार्थ प्रदीप। दी आपने भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, जैसे कि वो ऑमनी प्रेजेंट है ना। मैं यस, बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि भगवान में और हम में तो मतलब जैसे कि वो परमात्मा है और हम आत्मा है ना, तो हम उनके पार्ट एंड पार्सल ही है। तो उनमें और हमारे गुण में कुछ सिमिलरिटीज तो होती होंगी। यस, ऐसे कुछ कुछ गुण हैं जो उनमें है और हमें भी है। यस। भगवान सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। वो इटर्नल है, ब्लिसफुल है, नॉलेजेबल है, हम भी सच्चित आनंद है, आत्मा स्वरूप है ना। तो भगवान के अंश हैं तो ये हम भी सच्चित आनंद है, मगर क्वांटिटी में डिफरेंस है। हमें भी वो गुण है मगर क्वांटिटी वाइज बहुत मिन्यूट है। हमारा साइज कितना बताया जाता है, एक बाल का अगर आप नोक ले लो, उसको 10,000 भागों में डिवाइड करो तो ये तुम्हारा साइज है। तो जैसे एक समुद्र और समुद्र की बूंद दोनों नमकीन होती हैं, होती कि नहीं होती? अंश है ना, समुद्र की बूंद भी तो समुद्र से ही आ रहा है, तो वो भी नमकीन है, समुद्र भी नमकीन है। मगर क्वांटिटी देखी जाए तो समुद्र की बूंद में एज कंपेयर टू समुद्र बहुत कम है। तो वही हिसाब हमारा भी है। आया पार्ट समझ में? हाँ हाँ दी, समझ गया। गुड। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन है दी। हाँ ओके, 1 मिनट पूनम माता जी। हाँ जी पार्थ प्रदीप बोलो। हाँ दी, आपने कहीं ना कहीं फ्री विल के बारे में भी बताया है। अभी फ्री विल के बारे में भी थोड़ा सा बताया है, जैसे कि अभी भगवान हमें मतलब देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी चॉइसेस हैं कि मतलब है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि वो चाहते ही हैं अगर कि हम उनके पास जाएं, तो वो हमारे लाइफ में इतनी मतलब इतनी तकलीफें क्यों रहती है, मतलब हर्डल्स क्यों देते हैं? क्या ये पास्ट कर्मों से भी रिलेटेड है, ऐसा कुछ है? भगवान हमें तकलीफ नहीं देते, ये हमारे कर्मों का नतीजा है। हाँ पार्थ, तो जो भी हमारी फ्री विल है ना, इसको हम गलत जगह इस्तेमाल करते हैं जिसका हमें भुगतान करना पड़ता है, तो वो हमारे कर्मों का नतीजा है। इसमें भगवान हमारे लिए कष्ट नहीं लेके आ रहे क्योंकि हमें दुश्मनी है, तू मेरे को छोड़ के आ ले सड़ यहाँ पे। ऐसा नहीं है। तो ये हमारे खुद के कर्म है जिनकी वजह से हम सबर करते हैं, ठीक है। तो अगर कर्मों से मुक्त होना अगर चाहिए तो पूर्णतः भगवान की शरण ले लो, ठीक है। सपोज हमें पुराने जन्म में हमने जो गलत काम किए होते हैं, क्या होगा? तो हमें अगर वो सपोज याद रहता, तो इस जन्म में तो हम सही कर सकते थे ना उसको। और हम केयरफुल भी रहते हैं कि ऐसा गलती दोबारा ना हो। फिर मेमोरी भी तो उन्होंने दी नहीं ना, फिर पुरानी वाली। फ्री विल तो है, पुराने कर्म तो हमारे उसके अनुसार हम भुगत रहे हैं। अब इस जन्म में आपको इच्छा, एक आपको अभी मौका मिला भक्ति करने का, अगर आप पूर्णतः भगवान के लिए कार्य करोगे तो कोई एक्शन रिएक्शन आगे होगा नहीं, और पुराना वो भी खत्म हो जाएगा। आई समझ में पार्थ? पुराना वो तो हाँ भुगतान दीदी। करेंगे हम। अभी आपके पास फ्री विल है ना, अब तो यहाँ तो दोबारा आप और क्रिएट करो नया कर्म। यहाँ तो भगवान की पूर्णतः शरणागत होके पुराना भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, मतलब कि जैसे कि अब अगर बुरा किया है तो भुगतो। अब अच्छा किया है तो पता भी नहीं है। अगर पता चला कि पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तो इस जन्म में तो मैं आराम करता ना, फिर मैं पुराने उसको भुगता फिर। अच्छे कर्म है इसीलिए तन में कपड़ा और रोटी मकान मिल रहा है आपको, एक बुद्धि है, मनुष्य जीवन है, तो ये अच्छा कर्म है। जानवर जूनी में नहीं हो।
हाँ पार्थ, ये अच्छे कर्म का नतीजा है कि आपको एक मनुष्य जीवन मिला है, एक बुद्धि मिली है, तन पे कपड़ा मिल रहा है, रोजी रोटी रोज खाने को मिल रहा है, माता पिता हैं अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई मिली है, तो एक अच्छे कर्म का नतीजा है। अब इस अच्छे कर्म को आप कैसे यूज कर रहे हो आप पे निर्भर करता है कि आप दोबारा एक्शन रिएक्शन अच्छे करोगे बुरे करोगे, भुगतना आप धरती पे ही आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम भक्ति में लगे ताकि एक्शन रिएक्शन से ही परे हट जाए। तो ये मत सोचो कि बुरा क्या तो अच्छा क्या, अब ये सोचो कि मैं कैसे इसको कर्म को खत्म करूं, तो उसके लिए भगवान की सेवा करिए। ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। ओके। हाँ जी पूनम माता जी, आपका कोई प्रश्न है, बोलिए। हाँ जी, राधे राधे माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਜੁੜੀ ਆ। हाँ जी, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ। हाँ जी, हाँ जी माता जी। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਬੈਕ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਇਹ? नहीं माता जी, जो शिव जी भगवान ना वो हाँ जी। भगवान देखो, एक मिनट माता जी, ये जो मीटिंग है ये खत्म होने वाली है, तो माता जी तो ऐसी दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर मैं आंसर कर दिया। हाँ जी। प्लीज आप लोग हाँ दोबारा जी। ज्वाइन कर लो, तो फिर मैं आंसर करती हूँ, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी बीच में ही, तो प्रॉपर आंसर मैं दे नहीं पाऊंगी। आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन करो, आप लोग दोबारा से आ ठीक है। जाइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज आती है ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी माता जी, ਜਿਹੜੇ शिव जी भगवान ना एक्चुअली मतलब शास्त्रों में भी बताया जाता है कि जो भगवान कृष्ण है वो है सुप्रीम पर्सन है। ठीक है, तो बाकी जो आते हैं उनके नीचे आते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया, जैसे ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, और हमारे शिव जी हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि बनाते हैं, जो शिव जी हैं लास्ट में तांडव करते हैं तो सृष्टि खत्म होती है। तो जैसे हमारे शास्त्र में बोला जाता है, अभी मैं इतना डिटेल तो आपको कैसे समझाऊं, बट जो भी थोड़ा बहुत प्रयास करती हूँ, तो जो ब्रह्मा जी हैं वो जीव तत्व हैं, मतलब जैसे हम लोग है ना जीवात्मा है, तो ब्रह्मा जी भी वैसे। हाँ जी। ठीक है। अच्छा। शिव जी हैं, शिव जी का तत्व थोड़ा अलग है। शिव जी क्या है, ब्रह्मा से मतलब उनका ना शिव तत्व है जो कि जीव तत्व से अलग है। मतलब आप लगा लो कि जो विष्णु जो शिव जी है ना वो हमारे भौतिक जगत में भी नहीं होते, जो हमारा आध्यात्मिक जगत है उसके और भौतिक जगत के बीच में कहीं पे होते हैं। ठीक है, और शिव जी हमारे सबसे बड़े वैष्णव भी माने जाते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। ठीक है, सबसे बड़े वैष्णव भक्त माने जाते हैं, और वो हरि का ही नाम जप करते हैं। ठीक है, हाँ जी। भगवान शिव जी जो है वो हरि का नाम जप करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप दही दही जमाते हो माता जी? हाँ जी। दही जमाते हो ना, तो दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, दूध से दही जमा सकते हैं हम लोग, मगर दही से दूध को निकाल सकते हैं हम? नहीं ना कर सकते। तो इसका ये वही उदाहरण है कि दूध जो है वो विष्णु है, भगवान कृष्ण, हाँ जी। और जो दही है वो शिव जी हैं, कि उनसे शिव जी को निकाला जा सकता है, मगर शिव जी से फिर दोबारा विष्णु नहीं बन सकते। अच्छा है। हाँ जी। तो शिव जी जो है वो उनसे मतलब हाँ, देवों में देव है, महान देव है, सबसे ऊपर उच्च एक स्थान है उनका, मगर विष्णु से नीचे ही है वो। ठीक है, और अपने जो पुराण है, इवन शिव जी भगवान जी भागवत में भी पार्वती माता को कहते हैं कि जो शिव विष्णु का भक्त है वो सबसे बड़ा भक्त है। तो विष्णु आराधना बड़ी आराधना है। अगर उनकी खुद की होती तो बोलते ना कि मेरी आराधना सबसे बड़ी है, तो ऐसा बोल सकते, मगर उन्होंने नहीं बोला। तो हमें शिव जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम शिव जी को अनादर करें उनका, नहीं, आप उनको जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े वैष्णव है। और उनसे ये प्रार्थना करो कि आप जैसे हरि का नाम जप करते हो तो मैं भी हरि का नाम जप करते हुए अच्छे से भक्ति और भक्त बन सकूं। तो ये हमें उनसे कृपा मांगनी चाहिए। ठीक है माता जी। अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा बोला कि विष्णु की पूजा करेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, हाँ, हम गोलोक जाएंगे, ऊंचा धाम गोलोक है, वहां से भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम आता है वहां से कोई वापस नहीं आता। अब जो शिव जी का धाम है वो माता जी आध्यात्मिक, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो वहां तक अगर हम पहुंच भी गए ना शिव जी की पूजा आराधना करते हुए, तो वहां से हमें दोबारा इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो क्योंकि वो एग्जैक्ट गोल वो नहीं है, हमारा जो गोल है वो भगवान के भगवत धाम जाना है। तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, आप कोई गलत नहीं है, आप करिए, मगर जो भगवान विष्णु की उच्च भक्ति, इवन शिव जी भगवान स्वयं कहते हैं, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी की आज्ञा भी मानेंगे। और शिव जी भगवान खुद कहते हैं, पार्वती को कह रहे हैं कि सबसे ऊंची आराधना ही विष्णु की है, तो उनकी पूजा करो। तो अगर हम शिव जी को फॉलो करते हैं
तो हमें फिर उनकी बात भी माननी चाहिए, है कि नहीं? ਹਾਂਜੀ फिर वो तो कहते हैं ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ कि ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ हाँ जी, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ अच्छा, ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, हाँ ਵਧੀਆ जी, ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ। हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं माता जी, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ हरे कृष्णा महामंत्र ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ शिव जी ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਚੜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ शिव जी ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। तो और ਜਿਹੜਾ मनुष्य जीवन ਦਾ परम लक्ष्य है वो भगवत धाम जाना है। और उस तक ਹਾਂਜੀ भगवत धाम जाने ਦਾ सही तरीका कलयुग ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते गति रनथा। ਕਿ ਜੇ कलयुग ਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हरे कृष्ण महामंत्र ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ हरे कृष्ण महामंत्र ਜਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਭਗਵਤ ਧਾਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਚ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ शिव ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ सदा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र माता जी ये इस भौतिक जगत ਦਾ नहीं है। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੋਕ ਕੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਧਨਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਗੋਲੋਕ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਚ ਆਇਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਚ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮੀ ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਚ ਉਸ ਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪੂਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੂਨਮ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, उतो पानी लेना पड़ेगा, ता करके मेरी प्यास बुझेगी, है ना? ਹਾਂਜੀ तो मगर भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं है माता जी। अभी जैसे भगवान कृष्ण, मैं क्या कृष्ण, तो कृष्ण उस नाम च प्रस्तुत है। आई समझे? मतलब भगवान कृष्ण ਹਾਂਜੀ अपने नाम को ना बखरे नहीं है। तुसी भगवान का पटचित्र देखते हो या विग्रह देखते हो तो तुसी कहते हो भगवान कृष्ण शायद विग्रह च न, नहीं, तुसी नाम लेंदे हो, नाम च भी भगवान प्रस्तुत न। और ये भगवान की अपार कृपा है कि इस कलयुग च अपने नाम रूप च वो प्रस्तुत हुए न। क्योंकि हर कोई मंदिर च नहीं सेवा कर सकता प्रॉपरली, या विग्रह नहीं रख सकता, ते बड़ा आसान तरीके नाम जप किसले भी कर सकते हो। भावें तुसीं चलदे फिरदे करो, उठदे बहंदे करो, किते जा रहे हो उसले हरे कृष्ण करो, नाम जप कर सकते हो ना। तो हमेशा भगवान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। तो हरि नाम भगवान अपने नाम से प्रस्तुत ना, तो ये बड़ी पोटेंसी है माता जी। तो हरे कृष्ण महामंत्र हमें यहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो बड़ी महिमा है नाम जप करने दी। नाम जपते चलो, काम करते चलो, बस, ठीक है। तो ऐदा कर दे ही साडा उद्धार हो जाएगा, ठीक है माता जी। ठीक है, हाँ जी माता जी। तो नाम जप रोज करिए। कितनी माला कर दो माता जी तुसी? ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਮੰਤਰ। ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਜਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 24 घंटे नाम लेंदे रहो। कहते सततम कीर्ति अंतो मम, कि हम लोग कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। मगर ये जो माला से ना माता जी कनेक्शन एक अलग स्टैब्लिश होता है। तो अभी ज्यादा समय नहीं, तो दिन में जैसे सुबह जल्दी उठ जाओ, एक माला करो, तो उससे भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो जैसे ये माता जी ये होता है ना, इस पे जप नहीं करते, ये जो ऊपर वाला मंत्र है, आगे से ये जो दूसरा है ना, यहाँ से हमने करना है। तो पूजा माता जी आपको बताएंगे। तो जैसे हम लोग पहले प्रणाम मंत्र बोलते, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। और उसके बाद हम हरे कृष्णा करेंगे। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे, ये वाली उंगली नहीं लगाते माता जी, ये गंदी मानी जाती है, पॉइंट करते हैं ऐसे करके, तो इसलिए मानते हैं। तो ये ऐसे में नाम जप करते हैं। तो बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले मनके ते जाना है, फिर सेम महामंत्र रिपीट करना। तो इस करके जिवें एंड ते पहुंच जाओगे तो क्रॉस नहीं करना, इनू इधर रिपीट कर लेना जे तुसी एक और माला करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हो ठीक है, 108 इच मनके हुंदे ने, ये तुसी 108 वारी नाम जप करना और इनू मन च नहीं करना, जोर नाल बोलना ताकि तुसी सुन सको ओनू राम नाल, आप उसको ध्यान से सुन सको, श्रवण करना है। इतनी जोर नाल बोलो कि एटलीस्ट आप सुन सको उसको, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक एक एक मंत्र को सुनना है, तो उससे आप खुद देखोगे कि आपका हृदय कितना शांत होता है, भगवान से आप कनेक्शन फील कर पाओगे। ठीक है माता जी? हाँ जी, हाँ जी, तो इदा करिए प्लीज, एक माला रोज दिन दी करो। तो मैं पूछांगी थानू कल हाँ भी जी, हाँ की जी, कि नहीं की, ठीक है। हाँ जी, चलिए माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, राधे राधे माता हरे जी। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? सॉरी मेरी पंजाबी इतनी अच्छी है नहीं वैसे, 8 साल हो गए पंजाब छोड़े हुए, बट 8 साल नहीं हुए, मतलब बहुत टाइम हो गया। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है, कोई बोलना चाहेगा? एनी क्वेश्चन फर्दर और एनी रियलाइजेशन? आस्था माता जी, पूजा प्रिया माता जी, किसी और का कोई सवाल है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने मतलब धन्यवाद। पंजाबी में भी वही बस कहना था, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। क्या कह रहे हो पूजा माता जी? सॉरी। मैं कह रही थी माता जी कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही बोला था कि आप पंजाबी में भी तो अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हो और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मतलब काफी अच्छा लगा है सुन के। धन्यवाद। नहीं पंजाबी माता जी एक्चुअली हमारी डोगरी लैंग्वेज मिलती जुलती है, तो इसलिए पंजाबी आती है मेरे को ऐसी बात नहीं है। तो पंजाब में भी काफी टाइम निकाला है, तो दैट्स हाउ थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। वो बात अलग है, आज मैंने बोली बड़े टाइम बाद है, तो दैट्स हाउ। चलिए फिर, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो जो ये मैसेज आज हम लोगों ने देखा, जो भीष्म पितामह ने बताया, तो प्लीज उसको पालन करने का प्रयास करो कि गुरु साधु शास्त्र बेस्ट वे टू फॉलो। अगर हम उस तरीके से जीते हैं अपना जो साधन, और खासकर ये साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि rather than jumping from one person to another and another and another and taking guidance from here and there, just stick to गुरु साधु शास्त्र, ठीक है। अब गुरु साधु शास्त्र के साथ स्टिक रहिए। अगर आप इधर उधर जंप करोगे, नो डाउट यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज होंगे और अच्छे से दिमाग घूमता ही रहेगा। तो प्रयास करो, गुरु साधु शास्त्र के अधीन रहिए और प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। और अगर आप खुद नहीं पालन कर पा रहे हो तो ये मत बोलो कि मेरी तो कंडीशनिंग ऐसी, आप मुझे उस हिसाब से क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन, वो गलत है, ठीक है। प्रभुपाद ने हमें, जब प्रभुपाद ने कैसे लोगों को उपदेश दिए, हिप्पी लोगों को, उनकी कंडीशनिंग कैसी होगी बताओ। उनको भी बोला नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो दिस नो दैट, सो मेनी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली टोल्ड टू देम। प्रभुपाद ने ये नहीं देखा ये कैसे करेंगे, क्या बोलूं इनको मैं। प्रभुपाद ने सीधा उनको 4 नियमों के बारे में बताया। हाँ, धीरे धीरे बताया, जैसे हरिनाम को बताया पहले, फिर धीरे धीरे जप के बारे में, फिर दीक्षा के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो कि ये 4 नियम पालन करने हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इन 4 नियमों को सही से पालन कीजिए। जैसे आदेश मिलते हैं, गुरुजन वैष्णवगण आपको गाइड करते हैं, तो वैसा पालन करो, ठीक है। नो नीड टू डाउट ऑन देम एंड से कि आप सही नहीं बता रहे हो, या आपको बताना नहीं आता। बताना तब नहीं आता जब शास्त्र के अनुसार नहीं है, ठीक है। So one should be very careful with it. So then only you can progress, but otherwise it is very difficult. ठीक है। So we'll stop here. Thank you so much everyone. So चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आने के लिए। शाम को मिलेंगे आपको भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।